Hello, good evening, everyone. So today we'll complete the remaining portion of linear equations. That will include three variables as well. Equations with three variables as well. And then we'll go on to study theory of quadratic equations. Usually what many coaching classes and mentors do is they leave out the inequality part or maxima minima part of quadratic equation for later stages. We will not do that. We will cover as much as possible of quadratic equations in current sessions, and when we reach inequality we will repeat that part because CAT में बहुत ज़्यादा आता है quadratic equation, its graph, its maxima minima or inequalities. So it is better you start seeing it now rather than waiting for inequalities to come or functions and graphs to come. We'll start with that to some extent today. We'll start with some part of it today. This is the last session on linear equations, and then we'll start with quadratic equations. Here, give it a try. It's the actual question from CAT. You'll learn a few new things here. Try. There is some place, it has currency named MISO. The denominations are 1 MISO, 10 MISO, 50 MISO. Like we have denomination of, let us say 20 rupee, 50 rupee, 10 rupee, 5 rupee. Denomination, the value of currency. In how many ways can you pay a bill of 107 MISOs? When people hear the word ways, how many ways can you do this? They assume it as permutations and combinations. No, it is not. So take 2 minutes, take 3 minutes, give it a shot, give me an answer. Two minutes you have, give it a shot. Comment your answer.
So see, these kind of questions have gained prominence in recent times. Otherwise, three variables are very rare in CAT as well. See, in such questions, you try to understand and observe what does it mean by ways. Can I use 2 notes of 50 miso and 7 notes of 1 miso to pay 107 rupees? That is one of the ways. What if I use only 1 note here? And now please understand, there are many ways I can achieve this. I can say, let us say I have got 5 notes of 10 misos and 7 notes of 1 misos. I can pay this. If I decrease 1 note here, I will have to add 10 notes here. It will become 17 notes of 1 miso to pay 107. This is what we mean by ways. 2 notes, 7 notes, job done. 1 note, 5 notes, 7 notes, job done. So in how many ways can you make the payment? You have to deal with 3 terms or 3 variables. In this case, always start with the largest term, 50x, then 10y plus z. I want it to be equal to 107. Always start with this because x will have minimum range. Observe, x can be either 0 or 1 or 2. It cannot be beyond that. So see, I am creating cases x is equal to 2, x is equal to 1, x is equal to 0. When x is equal to 2, I have already paid a bill of 100 misos. 100 misos is paid. I have got 10y plus z is equal to 7 misos. I cannot use any note of y because y is worth 10 misos. So I will have to use 7 notes of z. This is one way. This is one way. When I use x is equal to 1, let me solve it on the opposite side here. Let me put x is equal to 1 on the left hand side. If I put x is equal to 1, I will have 10y plus 7, 10y plus z is equal to 1, is equal to 57. Is equal to 57. 57. Now please observe this part. I'm not going to find every value every time. Can I say y can be maximum 5? Then the remaining will be paid by z. Why should I care? Y can be 4, remaining will be paid by z. Y can be 3, remaining will be paid by z. Y can be 0, remaining will be paid by z. Because z का coefficient 1 है. With 1 rupee note, you can pay any remaining amount. So z can be anything. Once you take care of y, बचा हुआ सब z pay कर देगा. So how many values are there from 5, 4, 3, 2, 1, 0? There are 6 values. There are 6 ways. When I make x is equal to 0, it becomes 10y plus z is equal to 107. So what is the largest value y can take? 10. बाकी बच्चा ये पे कर देगा. Y can be 9, y can be 8, y can be 7, y can be minimum 0. So how many values can y have? 11 values. So 11 ways are there. So what is the addition of 1 way plus 6 ways plus 11 ways? That is 18 ways the total payment can be made. Always start from largest coefficient, largest number, and then slowly go to the lower value, lower number. Now I will increase the level of this a little bit. अभी जो recent level के हिसाब से है, I'll add one extra slide to this. This slide I cannot come back to. Same question has been framed. You have currency of 1 miso, you have currency of 5 miso, and you have currency of 10
meso. In how many ways? In how many ways can you make a payment of 107 mesos? Now see, earlier the coefficient was very high. The coefficient was 50. When the coefficient was 50, you had maybe 18 possibilities, 18 ways. Now coefficient is small. Less coefficient means more number of ways. ऐसा सोचो, आपके पास 50-50 रुपए के नोट है, and you can maximum pay 2 notes or then 1 or then 0. But now you have 10 notes, a 10 rupee का note, 10 miso का note. You will have many more possibilities. इसका आंसर 100 क्रॉस कर जाएगा. The answer to this will cross 100 for sure. Give it a try. Now I'll solve this for you. I want you to pay attention. I want you to write down the solution. If there's a note of 10, X is the number of notes, note of 5, Y is the number of notes, and Z is equal to 107. The best thing is Z. Z का coefficient 1 है. So whatever amount these cannot pay, Z will take care of it. अगर Z का सामने coefficient was 2, it becomes a slightly difficult problem. Z का coefficients become 3, it becomes very difficult problem. So see here, maximum value X can take is 10. Next value 9, next value 8. Within first 4 values अगर pattern नहीं मिला, question नहीं बनेगा. If 10 notes have been used, 100 mesos have been paid. That means 5y plus z is equal to 7 meso. Now can I say y can be either 1 or 0? 1 होगा तो 5 mesos paid, बाकी z दे देगा. 0 हुआ, z will have to pay all 7. So how many ways are there? I am writing the ways in a different color. 2 ways are there. Pattern बनना चाहिए. Pattern should be there, must be there. When I put x is equal to 9 here, 90 has been paid. 5y plus z is equal to, when you subtract 90 mesos, 90 minus कर दोगे 17 बच जाएगा. Can I say y can be 3 maximum, 2, 1 or 0? So how many solutions did you get here? 4 solutions. When x is equal to 8, that means 80 mesos have been paid. 80 रुपए आपने पे कर दी, 80 rupees. So now you have 5y plus z is equal to 27. How many values can y take? Y can be 5 maximum, or 4, or 3, or 2, or 1, or 0. There are 6 values. तो इतने में पैटर्न दिख गया होगा ना आपको. कैन यू नोटिस द पैटर्न? 2 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशन, 6 सॉल्यूशन. तो यहाँ कितने होंगे? 8 सॉल्यूशन. ऐसा चलता जाएगा. X will go up to 0. So यहाँ से लेके from 10 to 0 there are 11 numbers. तो 2, 4, 6, 8 जाएगा 22 तक. So number of solutions will be 2 plus 4 plus 6 plus 8 up to 22, which is addition of even numbers. Addition of even numbers. It will be 11 into 12, 132 solutions. Highlight this part, highlight this question. This is the current CAT standard. Within first 3 cases, if you are not able to judge, not able to create a pattern, then you have lost it.
See, once I move away from the slide, I cannot come back to this. Always start with the largest coefficient and then work your way back to the smaller numbers. और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करना बेटा. यू नोटिस हियर बाय यूजिंग मैक्सिमम वैल्यू हियर आपके छोटे नंबर्स बन रहे हैं. छोटे नंबर्स में इट इज इजियर टू लोकेट और क्रिएट पैटर्न्स. Moving on. Try this. Again, a cat-like question. Take 3 minutes, not more. Give it a shot. Champak takes a test called RAT, very innovative, RAT, which comprises 28 questions. In RAT, 3 marks are awarded for correct response, 1 mark is deducted for each incorrect response. There are no marks for unattempted questions. He scores more than 22 marks in RAT. What is maximum possible number of incorrect responses he could have marked? थोड़ा ध्यान से. 22 questions are there. So there is one deduction for incorrect answer. There are no marks for leaving a question. So you can get the question correct. Champak can get the question correct, or he can get the question wrong, or he might leave the question. L is leave the question. There are 28 questions. For correct, you get
3 marks. For a wrong answer, you lose 1 mark. Here, be careful. If he scores more than 22 marks, 22 marks से ज़्यादा देना है, and I want him to make maximum mistakes. I want him to make maximum mistakes. तो मैं नंबर कम दूंगा ना. Why would I give him all the marks? I would give this person 23 marks. It says he scores more than 22 marks. More than. I'll go with 23. देखते हैं what answer can I get for this. Now because I am looking for maximum wrong answers. I'm trying to maximize the wrong answers. How can that be achieved? Let me try and use some of these options. Options थोड़े ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं. See, to score 23 marks, I will definitely forget this for the timing. I will definitely need to answer 8 questions correct. तो 24 number आ गए. I will make 1 mistake. तो 23 marks आ गए. Now what I will do is I will deliberately balance right and wrong. Can I say 1 question right and 3 questions wrong means total score 0 हो गया balance. I am looking for ratio of correct 1 and wrong 3. मतलब मेरे को अभी 4 questions चाहिए और 8 questions and 1 question. Out of 28, 9 questions have been taken off. 9 questions निकाल दिए मैंने. बच्चे कितने questions? How many questions remain? There are 19 questions remaining. अब इस 19 में कितने कितने pair I can create of this? 4. 4 into 4, I can create 16 pairs. Into 4, 12 questions. Into 4 questions. So I can make 12 mistakes more. I can make 12 mistakes more from here onwards. I can make 12 mistakes more. So 13 questions I can get maximum incorrect. Is it possible to have more incorrect points? अगर मैं इसका स्कोर बढ़ाऊं, सी मैं 23 के स्कोर पे रुका हुआ हूं. I have how many more questions remaining? मेरे पास क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं? I have answered 8 plus 1 9, 9 plus 16, 25 questions have answered. मेरे पास बचे कितने questions हैं? 3 questions और. If I make 1 correct and 2 wrong, चलता है ना? So I can make 2 more mistakes. तो स्कोर बढ़ जाएगा आगे 2 नंबर. 22 से ऊपर ही चाहिए ना. So I'm offering this person 25 का स्कोर. I can make 12 wrong here. I can make 2 wrong here and 1 wrong here. That is, I can make 15 wrong. थोड़ा सोचो how to approach this problem. I started with 3 variables. Then I felt कि मेरे को 22 क्रॉस कराना है. एक बार 22 क्रॉस हो गया, now मैं बढ़ने नहीं दूंगा स्कोर. I will deliberately make more mistake. So I'll answer 1 question correctly and I will make rest of the mistakes. एक क्वेश्चन सही बना दिया मैंने, फिर मैं 3 गलतियां करूंगा. So in this manner, wrong attempts will go up. Is there any other way to approach this? I feel this is the best possible way to approach this question. Let me try to work with options. If I could make 17 mistakes, see, there are 28 questions. If I make 17 mistakes, 11 are there. Let me try this. I get all of them correct, minus 1 mark for each here. So 33 minus 17. 33 minus 17 means 16 marks. I cannot do that. 16 questions are there. Out of 28,
If 16 are wrong, that means 12 are correct. So 3 marks for each, 1 mark lost for each. So 36 minus 16, 20 marks. I can't do that. 15 if I try. Out of 28, 15 are wrong. 13 are correct. 39 minus 15. 39 minus 15, 24. Yes. For the first time, we have crossed 22 marks. For the first time, we have crossed 22 marks. So this is one of the better ways to attempt the problem. See, the options में jump कर गए. If options were not there, जो मैंने आपको पहले method दिखाया, that was the best approach to solve. Without options, the first one was the best approach. All right. Now there's a bunch of 2 questions and these are exactly from CAT. Try. ये देखो बेटा, if there are 28 questions, आपने 15 गलत मान लिए, 15 गलत मान लिए, 13 करेक्ट कर लिए, so 39 स्कोर आया अपना यहाँ पे. We have scored 39 marks minus 15 which is 24. हमें 22 से ऊपर मार्क्स चाहिए, तो 24 is above that. Otherwise in सब में I am not able to reach a score of 22. I am not able to touch a score of 22. Questions 13 and 14. Answer these questions on the basis of information given below. In a test comprising of 100 questions,
4 marks are awarded for every question answered correctly. The number of marks deducted for every question answered wrongly, and for every question left unattempted wrongly is this and this. Okay, so 4 marks for correct, 2 marks for wrong answer, and 1 if you leave. That is your score. Correct plus wrong plus left, there are 100 questions total. Up to this point, we have been we have been told marking scheme or 100 questions. If a student got 64 marks in the test, which of the following can be the number of questions solved wrongly by the student? मतलब 5 में से there is one option can be, others cannot be. Wrongly question कितने बनाए होंगे इस बच्चे ने? So let me start this by saying score is 64. 4C minus 2W minus leave is equal to 64. C plus W plus L is equal to 100. बहुत सारे तरीके बनाने की, यू कैन चेक ऑप्शंस, क्योंकि रॉन्ग का वैल्यू पूछा है, नेवर कैंसिल इट. इनको ऐड कर दो तो यू हैव 5C माइनस W, ये कट जाएगा, दिस विल कैंसिल अवे, कैंसिल आउट, 164. अब आप एक एक करके चेक कर लो वैल्यू अगर आपको चाहिए तो. 5C इज इक्वल टू 164 प्लस W का वैल्यू चाहिए. अब अगर W का वैल्यू पुट करोगे सो ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए. वी हैव डिस्कस दिस इन द लास्ट लेक्चर, इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं. इफ आई टेक W इज इक्वल टू 12, कैन 5C बी इक्वल टू 176? नो. If I take W is equal to 25, wrong answer 25. W 25. Can 5C be equal to 179? या 189? अब 25 पुट कर दो, खाली है 25 पुट कर दो, नहीं हो सकता. कैन इट बी 44? मैं अगर 44 पुट कर दूं, W is equal to 44, 5C becomes equal to, यहां 44 रख दिया, 208. क्या 208 5 का मल्टीपल है? नहीं हो सकता. If I put 56, W is equal to 56. If I put 56 here, take your time, तो ये बन जाएगा 220. Is it a multiple of 5? Yes, 44 times. अब देखो, आपने करेक्ट क्वेश्चंस को 44 लिया, रॉन्ग क्वेश्चंस को 56 लिया, तो आपके 100 क्वेश्चंस तो यही हो गए. अगर 100 क्वेश्चंस हो गए तो आप और क्वेश्चन नहीं बना पाओगे ना. 56 क्वेश्चंस बना के, आपने 56 रॉन्ग क्वेश्चन बना के 44 राइट करने पड़ेंगे, तब तो आपका 64 का स्कोर आएगा. अब जब ऑलरेडी क्वेश्चन मैक्स आउट हो गए, दीज आर ऑल मैक्स क्वेश्चंस, 100 से ऊपर कैसे जाओगे? तो उसके बाद का ऑप्शन चेक भी नहीं करना आपने. दैट इज द मैक्सिमम क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड रॉन्गली. मूविंग ऑन. अब मार्किंग स्कीम सेम है आपकी. 4 मार्क्स, बिकॉज यहां तक सब सेम है. 4 मार्क्स यू गेट फॉर करेक्ट, 2 मार्क्स यू गेट negative 2 marks for wrong, and 1 mark if you leave the question. That is your score. And how many questions? C plus W plus L is equal to 100 questions are there. If total number of questions left unattempted by a student in the test is 60, 60 क्वेश्चन बच्चा छोड़ चुका है, 60 क्वेश्चन बच्चा लीव करके आ चुका है,
60 क्वेश्चन छोड़ के आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय, इसका टोटल स्कोर क्या नहीं हो सकता। पिछले ऐसा क्वेश्चन है, टोटल स्कोर की बात हो रही है। तो अगर ये 60 क्वेश्चन छोड़ के आ चुका है तो C प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 40, ये 60 है, 60 पुट करके माइनस कर दो। अगर ये 60 है तो 4C माइनस 2W इज इक्वल टू, स्कोर को मैक्स ले लेता हूं, प्लस 60। आप जब इसको 60 पुट करोगे तो राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो स्कोर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, कैन नॉट बी। अब मेरे सामने वही दो ऑप्शंस हैं, या तो C कैंसिल करो तो W कैंसिल करो। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द लास्ट क्लास। एक वेरिएबल कम करने की कोशिश करो, मैंने इसको डबल करके प्लस कर दिया, तो हो जाएगा 2C प्लस 4C 6C। ये हो जाएगा 2W माइनस 2W एड होके 0, तो राइट साइड में आ जाएगा 80 प्लस 60 140 प्लस x। ये वैल्यू क्या है, देखो राइट साइड में क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। अगर मैंने x इज इक्वल टू ले लिया -2, ये उसका टोटल स्कोर है, तो 6C बिकम्स 138। क्या 138 6 का मल्टीपल है? बिल्कुल। 23 टाइम्स बिल्कुल मल्टीपल, इट कैन बी अ स्कोर। मैंने अगर x को ले लिया 10, तो 6C कैन बी 150। क्या ये 6 का मल्टीपल है? यस, 25 टाइम्स बिल्कुल हो सकता है। मुझे ये पता करना है कौन सा स्कोर नहीं हो सकता। लेट मी टेक नेक्स्ट वैल्यू, x इज इक्वल टू अगर 40 हुआ तो 6C इज इक्वल टू 180, अभी मल्टीपल ऑफ 6 है, यस। If I take this as 26, score is equal to minus 26. तो 6C is equal to 140 minus 26, 114। क्या ये 6 का मल्टीपल? लेट मी चेक। एक बार कैंसिल होगा, यस, बच गया 54 9। एब्सोल्युटली ये सब चलेंगे, ये सारे स्कोर पॉसिबल है। ऑल दी स्कोर्स आर पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं होगा इसका मतलब? -18। तो ऑन द आउटसेट ये देख के पता पड़ता है these questions are 3 वेरिएबल बेस्ड। बट आप जब देखो कैलकुलेट करके तो एक वेरिएबल कैंसिल हो जाता है, तो 2 में आपका आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन में सी लीव क्वेश्चन का, लेफ्ट क्वेश्चन का वैल्यू गिवन है, तो बच गया C एंड W। W कैंसिल हो गया, तो C और टोटल मार्क्स में X क्या था? टोटल मार्क्स। तो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू टू वेरिएबल, इट कम्स डाउन टू टू वेरिएबल्स। आगे बढ़ते हैं इनसे। ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा एट द स्टेज, बट आई वांट यू टू सी ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ, ताकि आगे जाके ट्रबल ना हो। टेक 2 minutes, टेक 3 minutes, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई।
थोड़ा क्वेश्चन का मीनिंग समझो. हाउ मेनी नंबर्स विच आर नेचुरल एंड लेस देन 50 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2a plus b. अभी तक कैसे क्वेश्चन आया करते थे? You used to be given a value of 2a plus 3b is equal to some number, let us say 54. Then we used to ask you how many values can a and b take, which is called number of solutions. अभी उल्टा कह रहे हैं आपसे. आपसे कह रहे हैं 2a plus 3b कितने नंबर्स हो सकते हैं? Number of values can this take. उल्टा ए और बी का वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं आपसे, टोटल वैल्यू पूछ रहे हैं. तो ये यूजुअली थोड़ा सा पीएनसी की तरफ आता है. इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अ पर्सन सेलेक्ट्स अ रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 50 और आपसे बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नंबर सेलेक्टेड कैन बी रिटर्न एज 2a plus 3b. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो बनेगा एल्जेब्रा से ही, बट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा. हाउ टू वर्क विद दिस, आपको ये समझना है. व्हाट आर ए एंड बी? ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स. देखो, अगर मैं मिनिमम वैल्यू 1 और 1 रखता हूं तो आउटकम विल बी 3 + 2 5. अब मुझे एक एक करके देखना और क्या क्या बन सकता है. व्हेन आई पुट a इज इक्वल टू 2 और मैं b को सेम रखता हूं, इट बिकम 7. कितने का जंप है? 2 का. अगर मैंने a को सेम रखा, a इज 1, देखो a को मैंने सेम रखा फ्रॉम हियर, फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू मैंने a को सेम रखा, बट मैंने b को इंक्रीज कर दिया. 2 + 6 8. तो डू यू सी यहां से कितना जंप है? 3 का. मैंने यहां से a को और बढ़ाया, लेकिन मैंने b को चेंज होने नहीं दिया. दिस इज 6 + 3 9. तो कितने का जंप है? 2 का. क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको? जब 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 आप a को एक एक करके बढ़ाओगे तो जो नंबर n है उस नंबर में +2 का जंप आएगा. आप जब b को +1 बढ़ाओगे तो नंबर में +3 का जंप आएगा. तो आप a और b पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो. डोंट वरी अबाउट a एंड b. यू स्टार्ट विथ मिनिमम वैल्यू. कितना है n का मिनिमम वैल्यू? 5 है n का वैल्यू. अब जब भी इंक्रीमेंट होगा, द इंक्रीमेंट विल बी आइदर 2 और द इंक्रीमेंट विल बी 3. क्यों होगा ऐसा? बिकॉज आपके पास 2 और 3 के मल्टीपल्स हैं, तो इंक्रीमेंट विल बी 2 और 3. अब सीधा आप 2 और 3 बढ़ाओ. इसमें 2 बढ़ा दिया 9, इसमें 3 बढ़ा दिया 10. अब देखो, आप जब 2 बढ़ाओगे तो फिर से ये आएगा ना, नथिंग न्यू. आप 3 बढ़ाओगे तो एक नया वैल्यू आएगा 11. आप इसमें 2 बढ़ाओगे तो 11 आएगा. 3 बढ़ाओगे तो क्या आएगा? 12 आएगा. तो एक बार सोचो, 2 और 3 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. अब देखो यहां पर आपके पास 4-5 नंबर कॉन्जिक्यूटिव आ गए ना. अब हर एक वैल्यू बन सकती है. एवरी वैल्यू कैन बी क्रिएटेड. आप मुझको बोलो 20 चाहिए, 12 चाहिए, 15 चाहिए, ले आएंगे. 7 के बाद 7 8 9 10 11 12 5 नंबर बढ़ गए कॉन्जिक्यूटिव, बहुत है. ऑल नंबर्स कैन बी क्रिएटेड. तो कौन कौन से नंबर नहीं बन पाए? 1 नहीं बन पाया, 2 नहीं बन पाया, 3 नहीं बन पाया, 4 नहीं बन पाया, 6 नहीं बन पाया. सी 6 नहीं बन पाया, यहां पे 6 इज नॉट देयर. बाकी सब बनेगा आपसे. तो 50 में से कितने नंबर बन सकते हैं? नेचुरल नंबर्स लेस देन 50. लेस देन 50 कैन बी एक्सप्रेस्ड. तो 50 से लेस कितना होता है? 49. तो 49 तक पूछ रहा है बेटा आपसे, 49 तक पूछ रहा है, लेस देन 50. तो 49 में से ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 नहीं बन सकते. दैट मीन्स 44 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड. 44 numbers can be formed. लिखो इसको, कंफर्म करो दिस इज क्लियर.
Moving on. ये थोड़ा सा अलग है. इफ यू फोकस नाउ, अब ए और बी पे लिमिट आ गया. ए और बी पे लिमिट आ गया. ए एंड बी कैन बी फ्रॉम 1 to 20. ए कॉमा बी कैन बी फ्रॉम 1 to 20. अब ए और बी का वैल्यू भी लगेगा साथ में. तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसको? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं वैसे सी का वैल्यू शुरू करूंगा. आई विल पुट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1. इसमें दोनों को मैंने 1 रख दिया. सो द वैल्यू बिकम्स 5. द वैल्यू बिकम्स 5. अब जंप आएगा 2 का, 3 का, 5 का और 3 का. 5 का और 3 का जंप आएगा, तो फर्स्ट वैल्यू 8 आ जाएगी. If I put a is equal to b is equal to 1, तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 8. If I put a is equal to b is equal to 20, इसमें 20 और इसमें 20 रख दिया, तो वैल्यू आ जाएगी 160. अब आपको समझना ये है, द जंप विल बी ऑफ व्हाट? द जंप विल बी आइदर +3 और +5. तो मैं एक एक करके 3 का जंप लेता हूं तो 11 आता है. 5 का जंप लेता हूं तो 13 आता है. 3 का जंप 14, 5 का जंप 16, 3 का जंप 16, 5 का जंप 18, 3 का जंप 17. देखो, हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए 5-6. जब तक 5-6 कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं आएंगे वी कैन नॉट स्टॉप. मैं थोड़ा सा इन्हें क्लोजर लिखता हूं. आई नीड मोर स्पेस फॉर दिस. आई स्टार्टेड फ्रॉम 8, फिर मैंने लिया 3 का जंप 11, इसी में 5 का जंप 13, इसमें 3 का जंप 14, इसमें 5 का जंप 16, इसमें 3 का जंप 16, 5 का जंप 18, इसमें 3 का जंप 17, इसमें 5 का जंप 19. तो देखो कंसेक्यूटिव नंबर बनना शुरू हो रहे हैं अभी. इसमें 3 का जंप 19, 5 का जंप 21, 17 में 3 का जंप 20, 5 का जंप 22, 3 का जंप 21, 5 का जंप 23. अब देखो 6-7 नंबर कंसेक्यूटिव बन गए, विच इज एडिशन ऑफ दीज नंबर्स 5 and 3. 7-8 नंबर बन गए. अब सारे बनेंगे आपसे. अब आप टेंशन लेना आपको, अब सारे बनेंगे. अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अपर लिमिट पे. व्हेन यू पुट दिस एज 20 and 20, तो आपका 160 इज द टोटल. अब जब इंक्रीज करके आए थे +3 +5, आप इंक्रीज करके आए थे +3 +5. अगर डिक्रीज करोगे तो -3 -5 करोगे. इसमें से 3 कम क्या होता है? 157. इसमें से 5 डिक्रीज क्या होता है? 155. ये पॉसिबल है. What is 3 less than this? 154. What is 5 less than this? 152. 3 less than this? 152. 5 less than this? 150. ऐसा रेंज बनेगा. 3 less than this क्या होगा? 3 less than this होगा 150
1. 5 लेस देन दिस 149. इससे 3 लेस क्या होगा 149. इससे 5 लेस क्या होगा 148. 3 लेस क्या होगा देखो 151 आगे आएगा, दैट इज ओके. 151 आगे आएगा, दैट इज फाइन. 151 यहां पर आएगा बेटा, यहां पर आएगा. इससे 3 लेस क्या होगा 148. इससे 5 लेस क्या होगा 146. इससे 3 लेस 149. इससे 5 लेस 147. अभी देखो फिर से आपके कई सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स बन गए. 152, 151, 150, 149, 148, 140, 146. तो 7-8 नंबर कंसेक्यूटिव बन गए. तो 152 के बाद सब बनेगा, 152 के बाद सब बनेगा. ऑल नंबर्स आर पॉसिबल. तो थोड़ा ध्यान देते हैं. 16 से लेके 152 तक सब बन सकता है. तो जब अपर लोअर लिमिट दोनों काउंट होता है, टोटल नंबर कैसे गिनते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर प्लस 1, ऐसे गिनते हैं टोटल नंबर्स. ये हो गया 136 प्लस 1, तो 137 नंबर्स हुए. देखो सुनो मेरी बात को. फ्रॉम हियर वी हैव 137 नंबर्स. फ्रॉम हियर वी हैव 137 नंबर्स. We have 137 numbers from here onwards. So क्या बच गया 1 2 3 4. 1 2 3 4. तो 8 नंबर और बन सकते हैं. तो 145 नंबर्स बन सकते हैं टोटल. How many values can C have? C can have 145 values. C can have 145 values. ये थोड़ा सा एट द स्टेज ज्यादा एडवांस हो जाएगा. दैट इज हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर्स आर पॉसिबल. अगर 50 क्वेश्चंस हैं और आपको 4 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन सही करने के, और 1 नंबर डिडक्ट होता है रॉन्ग करने का, तो हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट स्कोर्स आर पॉसिबल. थोड़ा लंबा हो जाएगा एट दिस स्टेज. वील कम बैक टू दिस क्वेश्चन इन सम अदर सेशन. Try this. Try this problem.
One of the ancient Indian temples has a box that triples anything that is put into it. One day, a girl visits the temple, puts certain number of gold coins in the box. Quick box it triple करेगा. Whatever you put inside the box, it will give you triple the amount. Triple करके आपको देगा. One day a girl visits the temple, puts a certain number of gold coins in the box, takes all out and donates some of the coins to the poor, and repeats the process 2 more days. At the end of the day, she is left with 4 coins after giving away same number of coins. तो इन्होंने 3 दिन ऐसा किया. तो पहला सवाल है, what is minimum number of coins that she could have started with? What is maximum number of coins she could have donated each day if it is below 100? Below 100. Again, you will rarely find these kind of questions in live lectures, regular lectures. थोड़ा high level का होता है. Usually mocks के लिए लोग बचा के रखते हैं, master class के लोग बचा के रखते हैं. तो ये box है. You put x in this. आपको 3x करके मिलेगा. You donate y from this. इतने आप कॉइन लेकर जाओगे वापस. ये बचा रिमेनिंग कॉइन्स है. तो ये कह रहे हैं कि डोनेट करने के बाद ये सेम प्रोसेस उन्होंने अगले और 2 दिन 3 करा. तो ये बचे हुए कॉइन आप फिर से इसमें पुट करोगे. तो व्हाट विल हैपन इज, देखो फर्स्ट डे का कॉइन x, यहां थोड़ा ऊपर लिखते हैं. फर्स्ट डे का कॉइन x, इट गेट्स ट्रिपल्ड. आपने डोनेट कर दिए y, तो ये लेफ्ट ओवर है. ये लेफ्ट ओवर कॉइन अगले दिन आपके फिर ट्रिपल हो जाएंगे, फिर आप डोनेट कर दोगे. 2 दिन बीत गए. नेक्स्ट डे आप फिर बॉक्स में डाल के ट्रिपल कर दोगे, आप डोनेट कर दोगे. तो ये 2 more days हो गए. पहला दिन था ये, फर्स्ट डे इनर बॉक्स है, ये सेकेंड डे और ये थर्ड डे. अब जाते वक्त कितने कॉइन्स आप लेके जा रहे हो? रिमेनिंग 4 कॉइन्स. तो इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट, इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट, इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट, तो 3 into 3 into 3 27x. ये वाला जो y है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 into 3, तो ये बन जाएगा 9y. ये वाला जो y है, इट इज मल्टीप्लाइड ओनली विद 3, तो ये बन जाएगा 3y, और ये बन जाएगा -y इज इक्वल टू 4. तो व्हाट वी हैव इज 27x minus 13y इज इक्वल टू 4. अब हमें बनाने हैं इंटीग्रल सॉल्यूशन यहाँ पे x और y के लिए. तो पहला है, what is the minimum number of coins she could carry on the first day? अब 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के चेक कर सकते हो. But does it make sense? आप समझो, what if the value comes out to be 12 coins, 11 coins? बहुत लंबे solutions जाएंगे. 13 is a smaller number. देखो मैं कैसे कर रहा हूं. मैंने लिखा 26x minus 13y is equal to 4 minus x. क्यों किया मैंने ऐसा? Why did I do this? It is already multiple of 13. Already multiple of 13. इसको होना पड़ेगा 13 का मल्टीपल. नहीं तो 0 भी होगा तो चलेगा ना. तो यू चेक हियर, x इज इक्वल टू 4 इज फाइन. ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. अब इसको आप कैंसिल कर दोगे 4 पुट करके, ऐसा आ जाएगा. देखो 26 into 4 इज इक्वल टू 13y. कैंसिल कैंसिल, y इज इक्वल टू आपका 8 आएगा. यू वांट टू चेक, आप इसमें 4 रखे देखो. इफ यू पुट 4 हियर, ये बन गया 108. यू पुट 8 हियर, ये बन गया 104. कितने कॉइन बच गए? 4. दिस इज द मिनिमम पेयर. ये मिनिमम पेयर है आपकी. तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स शी कैन स्टार्ट हर डे विथ? शी कैन स्टार्ट विथ 4 कॉइन्स. अब जब पेयर्स बनेंगे, अब क्या होगा? क्योंकि देखो क्या कोएफिशिएंट था 27, तो ये 27 से बढ़ेगा. This will increase by 27. And this will increase by 13.
तो अब देखो, आपसे पूछा जा रहा था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स शी कुड हैव डोनेटेड ईच डे इफ इट इज बिलो 100। मैक्सिमम कितने कॉइन्स ये डोनेट कर सकती हैं अगर वो 100 से बिलो है, तो 100 से बिलो मैक्सिमम कितने कॉइन्स ये डोनेट कर सकती हैं। Moving on. How many coordinates x and y are enclosed by x-axis, y-axis and this graph? When you say enclosed by x-axis and y-axis, थोड़ा सा ambiguity है. Should we consider the points on the x-axis, on the y-axis or not? When I read language like how many numbers are there for x between 1 and 100, I cannot count 1 and 100. I must count from 2 to 99. वैसे ही when you say enclosed by x-axis, y-axis and the graph, हम x और y axis को नहीं गिन सकते. We cannot count x and y axis. ये रिसेंटली कैट में इस तरह का सवाल आ चुका है विद डिफरेंट कोएफिशिएंट्स. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है. जैसा आपने देखा, ऐसे क्वेश्चंस दिखते नहीं हमें लेक्चर्स में. वी हैव टू वेट फॉर मार्क्स. ये भी हाई लेवल है, इसलिए मैंने इसको अभी के लिए लीव किया है. ये जो आखिरी के 5 क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, दीज आर ऑल कैट लेवल इवन बाय करंट स्टैंडर्ड्स. तो ये भी कैट लेवल है. थोड़ा सा आप ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन. टेक 3 minutes if you need.
तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बार बच्चे पैनिक कर जाते हैं बिकॉज दे मेक दिस क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इन देयर माइंड. यू गो बैक टू बेसिक्स, क्योंकि आपको एक्स वाई एक्सिस में पूछ रहे हैं. इफ आई मेक x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो आपका y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा. सो सी, we cannot go on x-axis, y-axis, on line. We need points inside. देखो x is equal to 0 पुट करके y के पॉइंट्स आते हैं, मुझे नहीं चाहिए. What I will put is x is equal to 1. जब मैं x is equal to 1 पुट करता हूं यहाँ पे, x is equal to when I put 1, तो जो y का वैल्यू है वो डेसिमल आता है. y is equal to, ये चला जाएगा 19, तो 9.5. तो यहाँ पे y is equal to 9.5 है. तो कैन आई से पहला वैल्यू इनसाइड होगा y is equal to 9, y is equal to 8, y is equal to 7. मुझे x एक्सिस नहीं काउंट करना है, तो y is equal to 1 will be the last point inside. मुझे पॉइंट गिनने हैं इनसाइड. 1 to 9 there are 9 points. Now when I put x is equal to 2, तो मेरे को y का मिल जाएगा, y is equal to 9 मिल जाएगा. x is equal to 2 पे y is equal to 9 है. मैं 9 को नहीं गिन सकता, इट इज बाउंड्री पॉइंट, मेरे को अंदर चाहिए, तो पॉइंट विल बी 8, 7, 6. कहां तक जाएगा? 1 तक. तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 8 पॉइंट्स आर देयर. व्हेन आई पुट x is equal to 3, यहां 3 पुट करेंगे तो y becomes 8.5. 8.5 कहां होगा? बाउंड्री पे होगा 8.5. एक बार चेक करो. व्हेन आई पुट 3 तो होगा 17. 17 डिवाइड बाय 2, 8.5. तो मेरा इंटीजर पॉइंट कहां से स्टार्ट होगा? 8 से लेके 1 तक. 8 से लेके 1 तक हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 8. तो 9, 8, 8. x इज इक्वल टू 4. देखो पैटर्न दिखना चाहिए 2 से 3 बार में. व्हेन आई पुट 4 हियर, जब 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 8. तो x के पॉइंट शुरू कहां से होंगे? 7 से. आप x इज इक्वल टू पुट करो व्हाट? x इज इक्वल टू पुट करो 5. ये 5 चला जाएगा तो y आ जाएगा 7.5. तो y 7 से स्टार्ट होगा ना बेटा. तो देखो 2 के पेयर बन रहे हैं ना. 9, 8, 8, 7, 7. अगली बार 6, 6 बनेगा, 5, 5 बनेगा, ऐसा चलता जाएगा. जब आप पुट करोगे 19, आप यहां पे पुट करोगे 19, इसमें 19 पुट करोगे 19, तो 2y इज इक्वल टू 1. तो एक भी पॉइंट नहीं है. आप पुट करोगे 18, x इज इक्वल टू 18 पुट करोगे इसमें तो y इज इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन वो बाउंड्री पे होगा. आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 17, 17 पुट करोगे 3 बन जाएगा, 3 बाय 2, 1.5. तो y इज इक्वल टू 1 आएगा सबसे आखिरी में. आप 16 पुट करोगे तो भी आपका 1 आएगा फिर से. तो ऐसा चल के 1, 1 तक जाएगा. अब आप नोटिस करो क्या हो गया यहाँ पे. डू यू सी 1 से लेके 8 तक is 8 into 9 upon 2, 36. ऐसे 2 सीरीज बनेंगे ना आपके. 1 से लेके 8 तक 2 सीरीज बनेंगे आपके. ऐसे 2 सीरीज बनेंगे. तो 72 पॉइंट्स ये हो गए और एक पॉइंट ये आ जाएगा विच इज 9. तो टोटल पॉइंट्स आर 81. दैट इज योर आंसर. टोटल पॉइंट्स आर 81. ये कल पिकअप करेंगे. विल स्टार्ट विद दिस टुमारो. और लोग अटेंड कर पाएंगे. विल स्टार्ट विद थियोरी. करीब करीब 25 to 30 मिनट्स की थियोरी लगेगी.
ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है ग्राफ, व्हाट आर द रूट्स, फॉर्मूले ड्राइव कैसे होते हैं, अपवर्ड ग्राफ, डाउनवर्ड ग्राफ, मैक्सिमा, मिनिमा, फिर इसमें भी नेचुरल रूट्स, सर्ड रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, बहुत थ्योरी है और ये बार बार पढ़ाएंगे इन एवरी पेपर ऑफ कैट सिंस लास्ट 3 years 4 years। 2 क्वेश्चंस आते ही हैं क्वाड्रेटिक पे। दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस सीरीज, दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक पे 2 क्वेश्चंस आने ही हैं आपके पेपर में। वी कैन कंफर्म दिस विथ एवरी पेपर ऑफ कैट। टुमारो विल पिक इट अप फ्रॉम हियर, यहां से पिक करेंगे कल। कल स्टार्ट करते हैं ऐसे।